Now let us solve question number 8. So 8th question says let O 0, 0, A 2, 0 and B 1, 1 by root 3 be the vertices of a triangle. Let R be the region consisting of all those points P inside triangle AOB which satisfy the condition D P, OA is less than minimum of DP, OB, DP, AB, where D denotes the distance from the point P corresponding to the line. Sketch the region R and find its area. So 8th question seems to be an interesting question. Question में हमें दिया है 3 points O 0, 0, A 2, 0 and B 1, 1 upon root 3. These are the 3 points which they say correspond to the vertices of a triangle. So let us draw this triangle first. See, this is our triangle OAB. ओके O के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में क्या दिए हैं? O के कोऑर्डिनेट्स आर 0, 0. A के कोऑर्डिनेट्स आर 2, 0. सो दिस पॉइंट हैज टू बी A. A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 upon 1 by root 3. So this is my triangle OAB. Perfect. Now next thing they say, let R be the region consisting of point P inside this triangle AOB. मतलब R इस triangle के inside होगा which satisfy the condition distance of P from OA. Distance of P from OA should be less than minimum of distance of P from OB, that is what they say, minus comma distance of P from AB. So what they are telling is P is a point inside this triangle which satisfy this condition. मतलब P का distance OA से is less than P का distance is less than minimum of P का distance from OB and P का distance from AB. So अगर P का distance OA से let us say is A, P का distance OB से है B और AB से है C, तो what they are telling is A should be less than minimum of B, that is P का distance from OB and C. या फिर मैं ऐसा कह दूं कि A should be less than B and A should be less than C. इन दोनों में से जो मिनिमम होगा A उससे छोटा होना चाहिए, मतलब A दोनों से छोटा होना चाहिए, A B से भी छोटा होना चाहिए और A C से भी छोटा होना चाहिए, यही क्वेश्चन में कहा गया है. सो दिस इज व्हाट वी गेट थ्रू द क्वेश्चन. नाउ हमें इस कंडीशन के लिए P की वैल्यूज निकालनी है सच दैट A इज लेस देन B एंड A इज लेस देन C. सो लेट अस से P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C. A की वैल्यू क्या हो जाएगी? A का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन OA वुड बी इक्वल्स टू y. परफेक्ट. P का डिस्टेंस OB से क्या होगा? इसके लिए हमें OB की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी सबसे पहले. सो OB की इक्वेशन हो जाएगी y by x is equals to 1 upon root 3. So I can write this as root 3y equals to x. Okay. So B की इक्वेशन हो गई, OB की इक्वेशन हो गई root 3y minus x. And what is the distance of P from OB? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो B की वैल्यू हो जाएगी मॉड रूट 3y माइनस एक्स अपॉन 2. सिमिलरली हम AB का डिस्टेंस पता करते हैं, AB की इक्वेशन पता करते हैं. AB की इक्वेशन होगी y अपॉन x माइनस 2. दिस वुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन माइनस 1. सो दिस वुड बी y root 3y should be equals to minus x plus 2, or I can write root 3y
plus x minus 2 equals to 0 is the equation of my line AB, and from here I can say this distance C is going to be equal to mod root 3y plus x minus 2 upon 2. ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ, ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ C. सो यहाँ से मुझे A की वैल्यू मिली y, B की वैल्यू मिली रूट 3y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और C की वैल्यू मिली रूट 3y प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2. Perfect. Now let us apply these conditions. We know that A is less than B and A is less than C. तो इन वैल्यूज को x और y की क्या वैल्यू सेटिस्फाई करती है वो देखते हैं. So what I get, A is less than B, मतलब y is less than mod root 3y minus x divided by 2. Okay. Now अब एक चीज देखिए, हमें दिया है P जो है इट इज इनसाइड दिस ट्राइंगल. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, x वुड बी ग्रेटर देन रूट 3y, है कि नहीं? आप एक काम कीजिए, आप इस वाली लाइन में 2,0 को सेटिस्फाई कीजिए. हम जानते हैं कि पॉइंट लाइन के किस तरफ लाई करेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें देखना है कि P OA के इस OB के राइट हैंड साइड पे लाई करे, let us satisfy 2,0 in this equation. So what do we get? What we will get is x is greater than root 3y. So यहाँ पे हमें मिला x is greater than root 3y. तो हम कहेंगे y would be less than, ये मॉड्यूलस को अगर पॉजिटिव करना है तो हमें बाहर एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा. तो ये x minus root 3y will be upon 2. समझ में आया हमने मॉड्यूलस का साइन नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि वी नो P इज इनसाइड दिस ट्रायंगल. सो इसलिए हमने ये वाली कंडीशन ली फॉर दिस P टू बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस लाइन OB. सो वी हैव y इज लेस देन x माइनस रूट 3 y बाई 2, और आई कैन राइट 2y प्लस रूट 3y इज लेस देन x, और आई कैन से y is less than 1 upon 2 plus root 3 x, और y is less than 2 minus root 3 x. यहाँ से हमें ये कंडीशन मिल गई. ओके, अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं विच इज a should be less than c. a should be less than c मतलब y should be less than mod root 3y plus x minus 2 divided by 2. ओके, अब हम चाहते हैं कि P जो है वो इस लाइन AB के लेफ्ट पे लाई करे. एक ऐसा पॉइंट देख लीजिए जो इस AB के लेफ्ट पे लाई करता है. मैं जानती हूँ ओरिजिन, ओरिजिन को यहाँ पे सेटिस्फाई किए तो हमें नेगेटिव साइन मिलेगा. मतलब अगर इस मॉड्यूलस को पॉजिटिव बनाना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे माइनस रूट 3y माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 2. इन ऑर्डर टू मेक दिस मॉड्यूलस पॉजिटिव हमें एक नेगेटिव साइन बाहर लेना पड़ेगा. तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से व्हाट आई विल गेट इज यहां से मिलेगा 2y इज लेस देन माइनस रूट 3y माइनस x माइनस 2. मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं. सो डू आई गेट 2 प्लस रूट 3y, 2 प्लस रूट 3y इज लेस देन माइनस x प्लस 2. ओके, और I can write this as y is less than minus 2 minus root 3y, 2 minus root 3 x plus minus 2. मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ. सो यहाँ से हमें दो लाइन्स मिली. y is less than 2 minus root 3x. This is the first
locus that we have got, not lines, this is the first locus that we have got and this is the second locus that we have got. Now let us try to plot these two locuses. अब इसमें एक और चीज देखिए, इन दोनों लाइंस के स्लोप equal in magnitude but opposite in direction. Let us say 2 minus root 3 that is the slope of this line is equals to tan theta. And अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो यू नो दैट दिस थीटा इन दिस केस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 15. सो tan 15 is equals to 2 minus root 3. So basically this can be written as, first वाला locus can be written as y less than tan 15 into x and the second locus is y is less than minus tan 15 x minus 2. सो फर्स्ट वाली लाइन कहाँ है, ओरिजिन से पास करी और इसका स्लोप है tan 15. तो फर्स्ट वाली लाइन कुछ ऐसी है और लेट मी ड्रॉ दिस इन सम अदर कलर. फर्स्ट वाली लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन and its slope is tan 15. Our second line is again is passing through 2,0. इस लाइन का x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे तो 2,0 मिलेगा एंड इट हैज स्लोप माइनस tan 15. तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी. ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी. मैं चाहती हूं y शुड बी लेस देन tan 15, मतलब ये वाला एरिया, and y should be less than minus tan 15 x minus 2, मतलब ये वाला एरिया इस लाइन का. तो बेसिकली ये जो एरिया है इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें ये मिलने वाला है एंड दिस इज द लोकस. एक बार और समझिए, a लेस देन b जब सॉल्व किया तो हमें ये कंडीशन मिली और a लेस देन c जब सॉल्व किया तो हमें ये कंडीशन मिली. और हमारा लोकस क्या है, a less than b and a less than c. So our locus is basically, if I write, it is y less than tan 15x and y less than minus tan 15 x minus 2. This is what our locus is basically. Okay, so y equals to tan 15 ये प्लॉट की और वो वाला देख रहे धीरे जिनमें y is less than tan 15. फिर y equals to minus tan 15 x minus 2 प्लॉट की और वो वाला एरिया देखा जहां पे y is less than minus tan 15 x minus 2 और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा this is going to be my required area. समझ में आया सभी को, एकदम क्लियर. अब एक और चीज देखिए, इस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी, यहां पे ये एंगल जो है ये 15 डिग्री है क्योंकि इस वाली लाइन का स्लोप 15 tan 15 है और ये एंगल भी 15 डिग्री है. मतलब व्हाट आई कैन से, इफ दिस इज सम पॉइंट लेट अस से P, so this triangle OPA is an isosceles triangle. Once again, ये एंगल 15, ये एंगल 15. सो ये जो एंगल OAP है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये वाली विड्थ है 2. अब आप मुझे इस ट्रायंगल का एरिया पता करके बताइए. ट्रायंगल की विड्थ है 2, दो एंगल्स है 15 डिग्री. अब एक और चीज देखते हैं, मुझे यहां पे बताइए इस ट्रायंगल OAB का नेचर, इस OB की लेंथ बताइए. इट इज 1 स्क्वायर प्लस 1/3 अंडर रूट और AB की लेंथ बताइए. इट इज अगेन 1 प्लस 1/3 अंडर रूट, विच मीन्स ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है. मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, just a second.
मैं आपको कंस्ट्रक्शन से अच्छे से और समझाती हूँ. दिस पॉइंट इज B 1,1/√3. समझिएगा, हम इस ट्रायंगल के एरिया को ज्योमेट्री की हेल्प से और आसानी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सो OB की लेंथ मुझे मिली 1 + 1/3 अंडर रूट. AB की लेंथ भी मिली मुझे 1 + 1/3 अंडर रूट. मतलब ये ट्रायंगल जो था ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, फिर ये ट्रायंगल भी जो मिला ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही मिल रहा है. मतलब ये जो OP है ये इस एंगल AOB के एंगल बाइसेक्टर है, और यहाँ पर जो AP है ये इस ट्रायंगल AOB के एंगल बाइसेक्टर है. मतलब कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ B से OA पे, तो ये पॉइंट P से पास होगी और ये सामने वाली जो लेंथ है दैट इज OA को इक्वली डिवाइड करेगी. मतलब दिस, इफ आई से दिस परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर P डैश, तो OP डैश भी 1 होगा और P डैश AB 1 होगा. सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? एक और बात समझाती हूँ. आइसोसेलेस ट्रायंगल है OAB, OPAB आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया, हम जानते हैं. तो मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि अगर मैंने B से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ की, तो जो P पे आती है तो उसको, जो P से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ की OA पर, तो वो उसको P से भी पास करना पड़ेगा. और अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर P डैश है तो मैं कह पाऊंगी OP डैश इज इक्वल्स टू PA, P डैश A. इसका मतलब PP डैश is going to be equals to 1 into tan 15, considering the fact OP dash is 1. So मुझे हाइट मिल गई इस ट्रायंगल की which is PP dash equals to tan 15. So अब ट्रायंगल का एरिया होगा half, base is 2, height is tan 15. So this is my area of this triangle OPA, and this is the region which is satisfying this condition, that is distance of P from OA is less than distance of P from OB and distance of P from distance from AB. क्वेश्चन सभी को समझ में आया? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फ्लेवर. क्वेश्चन समझ में आया एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. लोकस ट्रेस करने का क्वेश्चन है जिसमें एरिया फाइंड आउट करना था. इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, बट द मेन पार्ट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक एंड द ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक नेचर, but area under curve is even a part of it. So this is a hybrid question and all. But is everyone perfectly clear with the solution of the question? कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए. Perfect. Okay. So now let us proceed to the next question. आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए. This is an important one. So I will request you कि एक एक स्टेप को अच्छे से देखिए, नोट डाउन करिए, और कुछ भी डाउट हो तो अभी ही मुझसे पूछ लीजिए. So once you solve this, then we will proceed to the next question. But please note down this question first. और कुछ भी डाउट हो तो अभी ही मुझसे पूछें. ओके. नाउ लेट अस सॉल्व 9th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. सो 9th क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. लेट f of x equals to maximum of sin x, cos x and 1/2, then determine the area of the region bounded by f of x, x axis and x equals to 2 pi. So 9th question में our f of x is a function which is denoted by maximum of cos x, sin x, cos x and 1/2. And what do we have to find is to determine the area of the region bounded by this curve, x axis and x equals to 2 pi. इन तीनों के बीच में जो एरिया बाउंडेड है वो निकालना है. सो व्हाट डू वी सी इज f of x इज मैक्सिमम ऑफ दीज 3 फंक्शंस. तो हमें f of x का नेचर पता करना है. अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम हर इंटरवल में इन सब की वैल्यूज निकालें और फिर देखेंगे किस इंटरवल में कौन सा मैक्सिमम होगा, और उस तरीके से हम f of x को डिफाइन करें. मतलब मैं x इक्वल्स टू π/4, π/2, 3π/2, देन मे बी 5π/3, π/6, ऐसे सारे इन सब के इंटरसेक्शंस निकालो और फिर प्लॉट करो कि कौन से, फिर देखो कि कौन से इंटरवल में कौन सा बड़ा होगा. मतलब इट्स अ मैनुअल स्टेप एंड आई विल सजेस्ट अनदर वे फॉर दिस, दैट इज आई विल से एन इंटेलिजेंट एंड अ स्मार्ट वे. हम इन तीनों फंक्शंस के इंडिविजुअली ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि कौन से रीजन में बड़ा है. सो आसान हो जाएगा.
sin x का ग्राफ हम सभी जानते हैं, cos x का ग्राफ हम सभी जानते हैं, and x equals to 1/2 का ग्राफ भी हम सभी जानते हैं. So I think that would be an easy and a smarter way to determine the nature of f of x. तो ऐसे ही करते हैं हम sin x, cos x और x equals to 1/2 का ग्राफ प्लॉट करते हैं 0 से 2 पाई तक, क्योंकि हमें दिया है x एक्सिस और x equals to 2 पाई तक ही इसे पता करना है. So let us say this is our origin, this is pi by 2, this one is pi, this is 3 pi by 2 and this is 2 pi. हमें बस इतने ही रीजन में ग्राफ प्लॉट करना है. This is +1 and this is -1. ओके, सो ये है मेरी लाइन x equals to 1 and this is my line x equals to -1. ठीक है. Now let us first draw the graph of sin x. sin x का ग्राफ हम सभी जानते हैं कैसा होता है. सबसे पहले हम sin x का ग्राफ प्लॉट करते हैं. sin x का ग्राफ ऐसा होगा, मैक्सिमम एट पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे मिनिमम. सो sin x का ग्राफ में अगर प्लॉट करूं तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा. सो दिस इज माई ग्राफ ऑफ sin x. नाउ लेट अस प्लॉट अ ग्राफ फॉर cos x. सो cos x का ग्राफ ऐसा जाएगा. सो दिस इज माई ग्राफ ऑफ cos x. और ये दो कौन कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे? Just give me a minute. So this is my sin x curve and this is my cos x curve. Perfect. और ये दो कर्व्स कहां कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? So this first point of intersection, this is going to be pi by 4 and this value is going to be 1 upon root 2. और यहां पे कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? This value would be pi plus pi by 4 which is 5 pi by 4 और यहां पे this value would be -1 upon root 2. -1 upon root 2. ठीक है. Now let us plot the third graph, that is x equals to 1/2. Now x equals to 1/2, 1 upon root 2 से छोटा होगा तो ये कहीं यहाँ आएगा. So roughly let us say this is our line x equals to 1/2. So this is my line x equals to 1/2. अब ये लाइन sin x को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेगी. sin x 1/2 कब होता है? पाई बाय 6 पर, दैट इज 30 डिग्रीज. सो ये पाई बाय 6 पे इंटरसेक्ट करेगी. फिर ये sin x के कर्व को और कहां इंटरसेक्ट करेगी? और तो यहां पे इंटरसेक्ट करेगी नहीं, अभी cos x के कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है. sin x के कर्व को इसने पाई बाय 6 यहां पे इंटरसेक्ट किया, सॉरी. फिर cos x के कर्व को पाई बाय 3 पे इंटरसेक्ट किया. सो दिस कर्व इन ग्रीन इज अवर कर्व फॉर sin x. sin x को एक तो इंटरसेक्ट किया पाई बाय 3 पर और फिर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया. ठीक है. cos x के कर्व को और यहां पे इंटरसेक्ट किया एक और पॉइंट पे. sin x के कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. एक तो
π/6 पे and the another point is 5 pi minus π/6 which is 5 π/6. और cos x के कर्व्स को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो π/3 पे इंटरसेक्ट करेगी और दूसरा यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी which is going to be 2 pi minus π/3 which is 5 π/3. क्लियर? एक बार और समझिए, sin x का ग्राफ ये है जो हमने ग्रीन में ड्रॉ किया, cos x का ग्राफ ये है जो मैंने पर्पल में ड्रॉ किया है, एंड दिस इज माय लाइन x इक्वल्स टू 1/2. अब इंटरसेक्शंस पता करते हैं. sin x को इसने दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, मतलब sin x दो जगह पे 1/2 होगा, एक तो कब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा. तो एक तो π/6 पे पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा 5 π/6 पे sin x पॉजिटिव होगा, 1/2 होगा. cos x दो जगह पे 1/2 होगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में π minus π/3, 2 pi minus π/3 which is 5 π/3. अब देखते हैं कि किन किन रेंज में हमारे कर्व की क्या वैल्यू. तो अब f of x का नेचर डिफाइन करते हैं. सो f of x इज मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री कर्व्स. तो मैं क्या देखती हूं, what I can see here is कि 0 से लेकर π/4 तक मेरा sin x का कर्व, मेरा cos x का कर्व मैक्सिमम है. This is what I can see from here. Perfect. So from x varying from what I see here is for x varying from 0 to π/4 my cos x कर्व इज मैक्सिमम. ठीक है, तो इस रेंज में हमारा cos x का कर्व मैक्सिमम है. अब इस रेंज में देखिए π/4 से लेकर 5 π/6 तक मैं देखती हूं कि हमारा sin x का कर्व मैक्सिमम है. सो from x varying from π/4 to 5 π/6 our sin x curve is maximum. ठीक है, now from sin x from 5 π/6 to 5 π/3 this line again what is maximum, x equals to 1/2. क्योंकि इस रेंज में what I see is कि मेरे sin x और cos x दोनों 1/2 के नीचे आ रहे हैं. तो इस रेंज में what is maximum, x equals to 1/2. So in this range 1/2 is maximum for x varying from 5 π/6 to 5 π/3 what is maximum, 1/2. and in this range from 5 π/3 to 2 pi maximum क्या है, फिर से cos x. so again cos x is maximum in the range 5 π/3 to 2 pi. तो समझ में आया हमने f of x को किस तरह से डिफाइन किया. इज एवरीवन क्लियर? एक बार और समझ लीजिए, दो तरीके थे इस कर्व के रेंज को, नेचर को निकालने के. पहला तरीका तो होता कि हम इन सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मैन्युअली सॉल्व करते, हर पॉइंट पे sin x cos x की वैल्यू निकालते और फिर 1/2 से कंपेयर करते और देखते कि कौन सा मैक्सिमम है. ऐसा भी कर सकते थे पर थोड़ा सा टीडियस हो जाता. बट हम sin x cos x और 1/2 का ग्राफ बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हैं. इसीलिए हमने सेकेंड मेथड ऑप्ट किया कि हम तीनों के कर्व्स प्लॉट कर देते हैं और फिर देख लेते हैं कि कौन सी रेंज में क्या मैक्सिमम है. तो जब मैंने प्लॉट किया तो मैंने देखा कि 1 से π/4 तक में मेरा cos x मैक्सिमम आया, यहां से यहां तक में मेरा sin x मैक्सिमम आया, 5 π/6 तक, फिर 5 π/3 तक 1/2 मैक्सिमम आया और फिर यहां से 2 pi तक क्या मैक्सिमम आया, cos x. मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा होना है, π/6 तक हमारा ग्राफ होगा cos x, फिर यहां से ले π/4 तक, सॉरी
पाई बाय 4 तक। फिर पाई बाय 4 से लेकर 5 पाई बाय 6 तक हमारा ग्राफ होगा sin x। फिर दिस इज 5 पाई बाय 6, दिस वैल्यू वुड बी 1 बाय रूट 2। यहां से लेकर कि 5 पाई बाय 6 तक हमारा ग्राफ होगा sin x। यहां से लेकर 5 पाई बाय 3 तक हमारा ग्राफ होगा x इक्वल्स टू 1 बाय 2 और फिर 2 पाई तक हमारा ग्राफ होगा cos x। So basically this is our function f of x. Is everyone getting? f of x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब बताइए what is going to be the area under this curve? So area under this curve how will you define it as? हम इस एरिया को डिफाइन करेंगे इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 तक which curve we have to integrate? cos x into dx प्लस इंटीग्रल पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 6 तक what will integrate? We'll integrate sin x फाइव पाई बाय 6 से लेके 5 पाई बाय 3 तक what will integrate? 1 by 2। So 5 पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 3 तक what we are going to integrate is 1 by 2 into dx और 5 पाई बाय 3 से 2 पाई तक हम किस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे? We are going to integrate the curve cos x into dx। So इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके whatever area we will get, it is going to be the area under this curve। सभी को क्लियरली समझ में आया कि हमने क्वेश्चन में क्या किया? इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हम इस फंक्शन f of x के नेचर को डिटरमाइन करें। जब तक हम f of x का नेचर सही तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सकते थे, एरिया अंडर कर्व निकालना वाज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वंस अगेन आप f of x का नेचर मैकेनिकली भी सॉल्व करके निकाल सकते थे, बट आई स्टिल सजेस्ट कि अगर क्वेश्चंस में इस तरीके के ग्राफ्स हो जिनको प्लॉट करना बहुत ही आसान है, सो आई विल से ग्राफिकल मेथड इज ऑलवेज द बेस्ट, इजीएस्ट इन द क्विकेस्ट मेथड। तो जब भी ग्राफिकली अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल हो तो ऑलवेज ट्राई द ग्राफिकल मेथड। सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? किस तरीके से हमने ग्राफ प्लॉट किया ये समझ में आया? परफेक्ट। सो लेट अस एंड अवर शीट डिस्कशन टुडे एट दिस पॉइंट ओनली। कल हम इसी पॉइंट से हमारा डिस्कशन चालू करेंगे। सो विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 10। तब तक अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर पिछले किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कल मुझे बता दीजिएगा। सो वी विल इवन डिस्कस दैट विद द शीट डिस्कशन एंड नॉट इवन इन द शीट। अगर आपको पूरे एरिया अंडर कर्व के किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो वो भी आप पूछ लीजिए। जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस एज मच प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, because once again this is a practical based topic. The more number of problems you will practice, the more hands on experience you will get on this topic. So let's end our lecture here today. We'll start the sheet discussion tomorrow. Thank you.